ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? आप उन्हों तक फंसाना और भी इसके आगे की भी बातें हैं जो हमने नोटिस की हुई हैं। और दूर नहीं बैठा हूँ मैं, पीलीभीत, पूरनपुर, केसरगंज और जो लड़के का गांव है मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ। अगर वो गलत करेंगे तो मेरे पास उनके लिए चलाने के लिए कलम में शाही बहुत है, मेरी शाही ख़त्म नहीं होती। देखो फैमिली फ़ोन वो अलग से यूज़ करती थी, पर जो नंबर था वो हरचरण के नाम का उसके पास था। इस बात की पुष्टि है हमारे पास और मैं वो कार्रवाई बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? वैसे इतना मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मेरे गुरु महाराज जी का हाथ मेरे साथ है, मेरे भाई के साथ है। तो आप ऐसी निर्भौ निर्वैर निडर होके ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ जिन्ने भी 2-3 केस है ਉਹਦੇ 'ਚ साथ दे सके परिवार का। कम्युनिटी के ज़रिए ऐसा नोटिस आएगा, ऐसा केस होगा कि तेरे खिलाफ कोई, तेरी तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं होगा, ये याद रखना। FIR की कॉपी और वीडियो मेरे तक आ चुकी है कि मेरे पास ऑल इंडिया गन लाइसेंस है और मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता हूँ। तो मैं उन्होंने दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। उन्होंने ये भी बोला है कि जब भी आपने उधर जाना हो मुझे साथ लेके जाना, मैं आपके साथ जाऊंगा आपका ध्यान रखने के लिए। आपका भी नाम लिया उन्होंने। तो और उन्होंने भी कहा है कि जब भी आप जाएंगे हमारी पूरी टीम आपकी सिक्योरिटी के तौर पे, हमारी मतलब निहंगों की गाड़ी आगे पीछे रहेगी आपके साथ, ताकि आपको आपके साथ कोई शरारत ना करे। तो उनका भी मैं अपने पूरे दिल से शुक्रिया करता हूँ। वैसे इतना मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਲੰਘੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗਰਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਾਡੀ ਜੋ ਕਿ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਕੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ
ਕਤਲ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਪ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਾਚਿੰਗ ਮੈਂ ਵਾਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ 7 ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਾਈਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਂਦਰ ਦੇ ਚੁੰਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਈਵਨ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਫਸਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਭਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਲੋਕ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿ ਲੰਮੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਜਾਂ 10:30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਿੰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜੋ 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਚਰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ, सारे पब्लिक वालों भी सानू बड़े कमेंट आते हैं कि भाजी हिंदी च करो। सो हिंदी में बात करते हुए मैं ये बताता हूँ कि चोट के निशान फ़ोटो में दिख रहे हैं, और जिन्होंने बॉडी हवाले करी है उनके स्टेटमेंट है। अब उस स्टेटमेंट में और फ़ोटो में जो दिख रहा है, डॉक्टर ने अगर उन चीज़ों को नहीं लिखा तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर तो दोषी बनता ही है।
और पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं हैं कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कैसे किया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं भेजे। तो मैं लगा हुआ हूँ कार्रवाई पे। तो जो चीज़ों का पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं उनके ऊपर मेरी कलम चल रही है और मामला सीरियसली लिया जा रहा है। दूर बैठा हूँ, बस जल्दी ही पीलीभीत जाने वाला हूँ। जाएंगे, फिर लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, सबके साथ बताएंगे और जिसका जो दोष बनता है उसको सामने लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरे ख्याल यहाँ पे एक बात जरूर दर्शकों को बता देनी चाहिए कि जो इस बार का टूर होगा उसमें आपको कुछ ऐसे हैरानीजनक पक्ष भी देखने को मिलेंगे इस केस से जुड़े हुए कि जिससे कि आपको बहुत कुछ सच सामने आएगा। और सर यहाँ पे कुछ कमेंट्स का भी जवाब देना बनता है क्योंकि लोग भी इमोशनली और एक अपना भाई अपना बच्चा जान के हरचरण की मौत के इंसाफ के लिए जुड़े हुए हैं और वो ऐसी ऐसी बातें नोट करते हैं कि जो कि उनका जवाब देना भी बनता है। जैसे कि यहाँ एक ਨਿੰਮਾ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। और भी इसके आगे की भी बातें हैं जो हमने नोटिस की हुई हैं और समय आने पे इसका खुलासा करेंगे। आज उचित समय नहीं है। अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज़ किया है, थैंक यू। और इसके आगे की भी कुछ और बातें भी हमने नोट की हुई हैं, तो डेफिनेटली हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सर जैसे अभी लास्ट इंटरव्यू की थी लवप्रीत लब्बा और निम्मा जी के साथ, तो उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि लड़की बार बार हरचरण को ये बात बोलती थी जब वो स्कूल में होते थे, हालांकि स्कूल छोड़े हुए को भी 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, कि मेरा जो चाचा है वो गलत है, कुछ अनहोनी हो सकती है, कि ये भी कहीं कोई एक डर था या फिर कोई आने वाले खतरे की दस्तक दिखा रही। डेफिनेटली घर का पता तो होता ही है बच्चों को, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जो जब समय आएगा बताया जाएगा। सो कोई ऐसी बात नहीं है। आप कमेंट्स में कुछ और किसी सज्जन, कुछ लोग अनाप शनाप भी लिखते हैं, कुछ लोग गलत भी लिखते हैं, तो आप मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि आप लोग ही उनका जवाब दे दिया करो। उनका जवाब दे के हम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते, या तो आप उन लोगों को इग्नोर ही करो, क्योंकि वो लोग लगता है कि कातिलों के रिश्तेदार हैं, तो हमें रसीद देते हैं कि यस तड़फ रहे हैं वो हमसे, क्योंकि ये मुद्दा सो गया था। अगर शायद हम ना जाते और डेली रिपोर्टिंग ना करें तो ये मुद्दा ख़त्म होने वाला था। तो हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और पैरवाई कर रहे हैं, अपनी दूरदृष्टि से भी देख रहे हैं। लोकल मेरे बड़े सपोर्टर्स मुझे टाइम टू टाइम फ़ोन करके अपडेट देते हैं और मेरे से अगली इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि मुझे उनको क्या करना है आगे। तो मैं दूर नहीं बैठा हूँ, मैं पीलीभीत, पूरनपुर, केसरगंज और जो लड़के का गांव है मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ। मेरी नज़रें, मेरी मतलब शरीर वहाँ है, सो आत्मा भी वहीं है, समझ लो। हाँ, बेसिक शरीर मेरा इस समय मेरे होम टाउन चंडीगढ़ में है, बट अदरवाइज़ मैं वहाँ हूँ, प्रेजेंट हूँ। मुझे पल पल की खबर, पल पल का सब कुछ पहुँच रहा है। जितनी ज़रूरत होगी पब्लिक को हम बताएंगे, बिना झिझक बताएंगे और सच्चाई दिखाएंगे, हम तोड़ मरोड़ के नहीं बताते हैं। सर जैसे कि इसी केस में हरचरण सिंह के दोस्तों ने कुछ पॉइंट रेज किए थे जिसमें से कुछ हद तक सच सामने आया था, लेकिन उसके बाद जैसे कि अफवाहों का जवाब देने के लिए उनके दोनों दोस्तों को सामने भी लेके आए, हालांकि काफ़ी वो बीमार भी थे और समय भी वहाँ पे नहीं था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, पर फिर भी कुछ लोगों के जो कमेंट है, जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, वैसे तो जैसे आप अक्सर बोलते हो कि उनका जवाब देना उचित नहीं है, पर फिर भी एक आ रहा है कि जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्राइम ब्रांच से, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से, हालांकि उनके कमेंट से ही, उनकी जो हेडलाइन है उनसे ही उनकी सोच सामने आ जाती है कि वो जात पात को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, कि उनकी तबादला कर दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, सबसे पहले तो मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट देता हूँ, क्राइम ब्रांच में जो हैं, मेरे पास नाम है उनका, मोबाइल नंबर तक है, सब कुछ है, तो थैंक यू टू देम। उन्होंने भी केस को दोबारा उठाया है, लगे हुए हैं और लग रहा है कहीं ना कहीं
कि वो ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, अभी उनके ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। और कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कौन बदला है, कौन नहीं बदला, ऐसे लोगों को जवाब देने का हमारा कोई अधिकार या हमारा कोई मजबूरी भी नहीं है। तो ऐसे कई ज़्यादा समझदार लोग आते हैं, इग्नोर कीजिए इन लोगों को। मैं इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी प्रिक नहीं करना चाहता। अगर वो गलत करेंगे तो मेरे पास उनके लिए चलाने के लिए कलम में शाही बहुत है, मेरी शाही ख़त्म नहीं होती। वो जैसे हम पंजाबी कहते हैं ना कि की करा डैडी बैटरी ख़त्म नहीं होती, तो ये सुनील मल्लन की भी बैटरी ख़त्म नहीं होती। मेरी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। रिपू दमन एडवोकेट है, प्रिंस है एडवोकेट, जिनको अनंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये मुझे भी प्रिक करते रहते हैं, सर हम ये कर दें, हम वो कर दें। तो यंग माइंड है, मुझे आइडिया देते हैं, एक्सेप्ट करता हूँ, अपना प्रोफेशन का तड़का लगाता हूँ और भेज देता हूँ। तो मैं इन्वेस्टिगेशन टीम को कहीं किसी जगह पे कोई थ्रेट, कोई डर, कोई वो नहीं कर रहा। पर जो मेरा लीगल राइट है वो मुझे छीनना आता है, कब छीनना है, कैसे छीनना है, कैसे लेना है, सब आता है। आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल पुलिस ऑफिसर्स वर्किंग। जिन्होंने पहले गलत काम किया है उनको ठोकेंगे, टाइम आने दो, छोड़ूंगा मैं उनको भी नहीं, उनको ठोकूंगा। और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चिट्ठियाँ मेरी जा रही हैं। और मुँह जुबानी बात की का असर शायद ख़त्म हो जाए, लिखित चिट्ठी का असर अदालत में कागज़ों में ख़त्म नहीं होता। और इस समय ये मुद्दा मानयोग चीफ जस्टिस सर की नज़र में भी है, सीएम साहब की नज़र में है, और बड़े और भी डिपार्टमेंट हैं जिनके तक हमारी सूचना, सीबीआई है, सीआईडी है, इवन अपना विजिलेंस है, और भी कई डिपार्टमेंट हैं, उन तक पहुंची है। सर एक और सवाल है, इन्होंने अपने किसी व्यूअर्स ने पूछा है, प्रिया सिद्धू जी पूछ रहे हैं, सर आई जस्ट कम टू नाउ हरचंद का केस लखनऊ दे कोई वकील लड़ रहे हैं, इज इट सो? मैडम को ही पता होगा जी, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं पता। ऐसी कोई जानकारी ना परिवार ने मुझे दी है, ना मेरे पास सीधे तौर पे है, ना किसी जगह मैंने उनका नाम पढ़ा है, तो मैं नहीं बता सकता जी। ये प्रिया मैडम ही बता सकते हैं कि लखनऊ के वकील हैं, पर मैं चंडीगढ़ का वकील उनका हूँ, ये पुष्टि मेरे पास कन्फर्म है। मेरे पास वकालतनामे, कागज़, जो भी हमें ज़रूरत होती है वो साइंड है, और उनके लिए मैं पैरवाई कर रहा हूँ। हो सकता है वो भी हो, मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है जी। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਨ ਸੰਧੂ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ? देखो, फैमिली फ़ोन वो अलग से यूज़ करती थी, पर जो नंबर था वो हरचरण के नाम का उसके पास था, इस बात की पुष्टि है हमारे पास, और उसी का वो यूज़ करती थी। उसकी कॉल डिटेल के लिए भी हमने रिक्वेस्ट दे रखी है। ਤੇ ਸਰ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? जिनको ज़्यादा जल्दी है वो घर बैठ के बेडरूम एडवाइजरी ना करें, मेरे पास आएँ, मेरे साथ बैठें, काम करें, आपको पता लगेगा कि हम रोज़ क्या काम कर रहे हैं और वो कार्रवाई कहाँ तक चल रही है। ये कोई लाले की दुकान नहीं है, गए 10 रुपये दिए, 1 किलो चीनी लाए और घर बैठ गए। ये एक प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, इसमें बड़े सारे तरीके हैं, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी होगा हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगा, सुन जाएगा, और जितनी ज़रूरत है उतना ही पब्लिक डोमेन में आएगा। बाकी कुछ सीक्रेसीज भी होती हैं, हमने छोड़ा नहीं है। मेरे पास 3 केस हैं इस समय हाईलाइटेड। एक हरचरण पीलीभीत वाला केस है, दूसरा लवप्रीत लाडी वाला केस है जो बरनाला का है, जिसमें अगेंस्ट पार्टी, जो अक्यूज़ पार्टी है, बेअंत कौर बाजवा है, और तीसरा केस लवप्रीत लवी मलेरकोटला, जिसके इन लाज ने उसको जहरीला टीका दे के मारा है, तो उसका केस है। ठीक है जी, तो ये तीनों केस कर रहा हूँ। एक और केस आने वाला है मेरे पास अमृतसर का, उसमें कुछ लोगों ने उसको पीट कर मार दिया, और 302 का पर्चा दर्ज है। पुलिस ने अभी तक 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं करी, और मैं वो कार्रवाई बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। FIR की कॉपी और वीडियो मेरे तक आ चुकी है, हम बहुत जल्द वो वीडियो आपको अगले प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। लवप्रीत लवी वाले में, जो जमानत, हाँ, जो उनकी लोअर कोर्ट से जमानतें रद्द हुई थी, और
अगली कार्रवाई पेंडिंग है। लवप्रीत लवी वाले केस में लोअर कोर्ट ने उनकी जमानतें रद्द की हैं। वो लोग इसको 306 का मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये 302 है। तो कार्रवाई चल रही है, हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखो क्या बनता है। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी, मैंने परिवार को बोला है कि वो लोग भी एक बार मीडिया के सामने ज़रूर आएँ, मेरे साथ आएँ। तो बहुत जल्दी शायद अगले 1-2 प्रोग्रामों के अंदर ही परिवार को साथ लेंगे हम, और जितनी ज़रूरत वाली बात होगी वो हम पब्लिक तक लाएंगे, परिवार को भी सामने लाएंगे, और जो कंप्लेनेंट हैं देविंदर जी, उनके जीजा जी, उनको लाएंगे। और मैं एक और भी सिरसा से हैं मेरे कोई फ़ैन कह लो, खैरख्वाह कह लो, कोई निहंग बाबा जी हैं, मेरे जूनियर एडवोकेट, उनका नाम बताएंगे। उन्होंने मुझे एक ऑफ़र भेजी है कि मेरे पास ऑल इंडिया गन लाइसेंस है और मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता हूँ। तो मैं उन्होंने दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। उन्होंने ये भी बोला है कि जब भी आपने उधर जाना हो मुझे साथ लेके जाना, मैं आपके साथ जाऊँगा आपका ध्यान रखने के लिए। आपका भी नाम लिया उन्होंने। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिरसे वाले बाबा जी का, जिन्होंने इतना प्यार दिया है। एक और संस्था का मुझे फ़ोन आया था यूपी से ही, और इधर पंजाब में भी उनकी संस्था है, और उन्होंने भी कहा है कि जब भी आप जाएंगे हमारी पूरी टीम आपकी सिक्योरिटी के तौर पे, हमारी मतलब निहंगों की गाड़ी आगे पीछे रहेगी आपके साथ, ताकि आपको आपके साथ कोई शरारत ना करे। तो उनका भी मैं अपने पूरे दिल से शुक्रिया करता हूँ। वैसे इतना मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मेरे गुरु महाराज जी का हाथ मेरे साथ है, मेरे भाई के साथ है, तो आप सबका आशीर्वाद है। डेफिनेटली आपके इस कंसर्न के लिए अमेरिका से, कनाडा से कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि हम आपको एक नई गाड़ी लेके देना चाहते हैं, और उस गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल, हर चीज़ हम देंगे, तो आप हाँ करो। मतलब $1 लाख तक की ऑफ़र दी है कि ऐसे केस और बहुत हैं। उनके लिए भी धन्यवाद है उस बहन जी का। और एक लुधियाना से फ़ोन आया था मैम का, उन्होंने कहा था कि सवेरे 5 पाठ खरीदे है, हाँ जी, और उसके बाद कीर्तन करते हैं हम सारा परिवार। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको अपनी अरदास में याद रखते हैं। तो मैं उनको भी यही धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब पंगत और संगत बैठी होती है, तो संगत के मुंह से जब वो आशीर्वाद निकलते हैं, अरदास उनके साथ मिलके किया कीजिए कि भगवान परमात्मा वाहिगुरु सानू सद्बुद्धि दवे, हिम्मत दवे, तो असी निर्भौ, निर्वैर, निडर होके असी इस केस, जिन्ने भी 2-3 केस है ਉਹਦੇ 'ਚ साथ दे सके परिवार का। सो पैसों की मदद नहीं, दुआवां की मदद की लोड़ है, वो देंदे रहो सानू, वो हमें देते रहना। जिस भी धर्म समाज से आप जुड़े हैं, अपनी दुआओं में हमें याद रखना। जब अल्लाह के जो भी, वो एक ही है सबका, हम उसको हम अलग तरीके से मानते हैं, वो हमारी बात अलग है जी। सर ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि लोगों की दुआएं बहुत सारी साथ हैं। अभी भी मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, क्योंकि हमने सेगमेंट शुरू किया है। अगर आपने कोई क्वेश्चन हो, आपका इस सवाल कोई भी आप पूछना चाहते हो इस केस से रिलेटेड, या दूसरे बेअंत कौर बाजवा या लवप्रीत लवी केस के मामले में, या और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तकरीबन 95% लोगों की दुआएं हैं जिसमें, जो ब्लेसिंग्स हैं वही मिल। लड़के, हर एज ग्रुप के लोग, अभी मेरा पुत शेर वर्गा है, बब्बर शेर है, कुछ लोग रियल हीरो लिखते हैं आपको और मुझे, और बिल्कुल सीधे से हाँ, मतलब 1000 के पीछे 1-2 हैं जो लड़की वालों को या कातलों को प्यार करते हैं, तो वो भी अपनी भावना लिखते हैं। तो थैंक यू टू देम। हमारे काम की रसीद देते हो कि हमारी चोट लगती है उनको। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये इंटरव्यू कैसे करते हो, ये इंटरव्यू नहीं होती हमारी भाई साहब, हम तो आपसे बातें करते हैं, ये हमारा परिवार है। हम कोई इंटरव्यू, हम कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र या कोई ऐसे नहीं है। हम लोग तो आप तक सच पहुंचाते हैं, जो हमारी ड्यूटी बनती है। अफवाहों से बचो, और प्रोफाइल है मेरा, मैं ये काम ऑथराइज्ड हूँ, लीगल हूँ करने के लिए। क्या था वो? हाँ, एक महाबेवकूफ़ इंसान ने वकील 420 के नाम से कुछ बना रखा है। मैं उसे वार्निंग दे रहा हूँ। उसके कमेंटों में मैंने लिखा है कि अगर उसने उस लाइन को नहीं हटाया तो मेरी एडवोकेट कम्युनिटी के ज़रिए ऐसा नोटिस आएगा, ऐसा केस होगा कि तेरे खिलाफ़ कोई
तेरी तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं होगा, ये याद रखना। मैंने वकीलों के खिलाफ बोला, मैंने उसको नोटिस दे दिया। ये क्या चीज़ है मेरे लिए, 40,000 सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, क्या ना, चलो नाम तो लेने की ज़रूरत नहीं है, तो याद रखना मेरी बात छोड़ा नहीं जाओगे। और तुम्हारे पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है इस चीज़ को बोलने का। वार्निंग है मेरी, सुधर जा। सो दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवालों के जवाब, और इस केस में सामने आई कुछ नई अपडेट्स, क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में जानकारी। और एक बात बता दें कि जैसे कि वकील साहब ने भी वार्न किया, हम भी पहले यही, हमारे कहने का मतलब होता है कि जो तोड़ मरोड़ के या गलत चीज़ दिखाते हैं उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। सो आज के इस अपडेट में फ़िलहाल इतना ही, और अपडेट्स इस केस के रिलेटेड और जो वायरल ताज़ा खबरें होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ। और साथ ही एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि नोटिफिकेशन बेल ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है। और आप अपना सवाल कमेंट्स में कर सकते हो, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सो फिलहाल अभी यहाँ पे मुझे और वकील साहब को दिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, थैंक यू वेरी मच सर।